A warm welcome to this beautiful audience gathered here. We had such wonderful sessions and role plays, and we are honored that DTB Hospital has organized a skit depicting the antenatal, intranatal, and postnatal care that we are day and routine we are seeing in DTB Hospital. And this skit is organized by myself, Dr. Sanjita, uh, Quality Nursing Officer, Sister Bromila Agarwal, Nursing Tutor, Mrs. Seema Mittal ma'am, and the participants are the final year nursing students and the nursing officers. What will depict this? We are showing a primary anemic patient reporting to gynae OPD, ANC OPD at 32 weeks, and how we are managing her in OPD, then what's happening to her, let's see. I'm introducing you to the narrator, Miss Divya. She's a final fourth year student of nursing. Where is Divya? Okay, Divya, take over. Thank you, ma'am. And good afternoon to everyone present here. I'm Divya Reshwar, final year nursing student, as your narrator today. So let's begin with the scenario one. And the setup is of a typical day at an antenatal OPD. And our characters are Asha playing the role of a patient Pinky, Renu ma'am as mother-in-law, Shruti as the lab technician, Tisha as T5 anemia room sister, and especially our placard holders, senior nursing officers, respected Geeta ma'am and Shalini ma'am. Let's see what happens at the ANC OPD. कैल्शियम की दवाइयां नहीं लेनी है उसके 2 या 3 घंटे का गैप रखना है कैल्शियम की दवाइयां लेने में क्योंकि साथ नहीं लेनी उससे एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है इसका ठीक है हरी पत्तेदार सब्जियां पूरे चने दाल और गुड़ चना ये सब तो घर की मदद से डॉक्टर दवाइयां लिए खाने के बाद खाने की कोशिश कीजिए एक बार आप डॉक्टर को दिखा लीजिए वो आपको बताएंगे यानी अनीमिया की बीमारी अनीमिया कुछ ना है अनीमिया की बीमारी होती है आपने आयरन कैल्शियम की दवाइयां टाइम पे नहीं ली थी ना क्या है तो आपको भर्ती करना पड़ेगा फिर रिसर्च करेगा आपको दोनों ट्रेनिंग करने हैं आपको बच्चे के दरमियान भी नहीं होगा क्या खाना तो खाने से नहीं पड़ेगा नहीं खाने से नहीं पड़ेगा अभी बहुत कम आया है तो अभी 2
के हाथ में ठीक करेगा हटाना पड़ेगा ठीक और आप भर्ती का पर्चा लगा लीजिए रजिस्ट्रेशन काउंटर नीचे और एंट्री पेमेंट में जाके भर्ती हो जाएगी Now let's move on to the ANC ward setup, where Pinky has been admitted after being diagnosed with moderate anemia. Our characters are SR Miss Sandhya, nursing officers Lakshmi ma'am and Meenakshi ma'am, and PG student nurse Tanu. Let's see what happens at the ANC ward. भैया इसमें एसी पूरा काम करा सकते हैं which is one component and develop this. Have you taken a sample? No, I have not. Okay, so take a sample and send for PhD and filter where for type of anemia and also take a blood group of normality. Please check the vital and connect NSA. You tell me the NSA objective or not. Dr. BP is 110 by 70, pulse is 90 per minute, NCT is connected, NST is connected. Injection data 6 mg IM 12 hourly for 48 hours. Given. Okay, Dr. Tanu, please tell the patient attendant about the blood donor. Please count the patient attendant about the blood donation. Confirmation form भर दीजिए। पेशेंट का पैसा ठीक है। पेशेंट के साथ आपका देखो पेशेंट का एचबी 6 ग्राम है, इसके लिए 2 यूनिट ब्लड डोनेट करेंगे। आप डोनेशन के लिए 2 डोनर मंगा लीजिए। डोनेट करने को कौन रहेगा? मैं तो भैया होगी, लड़का मेरा मतलब नहीं देखो डोनेट तो करना पड़ेगा क्योंकि ऐसे तो नहीं लगता कि नहीं पैसे से कोई ब्लड नहीं मिलता। ब्लड डोनेट क्योंकि देखो ये मिथ है लोगों में कि ब्लड डोनेट के बाद कमजोरी आ जाती है, ये सब हो जाता है। नहीं, कोई कमजोरी नहीं आती। ब्लड डोनेट करने के बाद आपको अच्छे से खाना खाना है, ताजे फल खाने हैं, जूस पीना है, वो दोबारा से बन जाता है और तेजी के साथ बनता है। तो आप 2 लोगों को बुला दीजिए, नहीं तो जच्चा और बच्चा दोनों को सुरक्षित रखना है ना आपको। हाँ जी तो आप 2 लोगों को आप बुला दीजिए डोनेट करने। ठीक है, मैं आपसे रिश्तेदार हूँ। So during her stay at the ANC ward, she received 2 units of blood and her hemoglobin levels also improved to 9.2 grams per deciliter. But unfortunately, Pinky did not come for the follow-up as advised after the discharge, due to which at 37 weeks of pregnancy, she arrived at casualty with labor pains and signs of exhaustion. So before discharging, our sister has something to come. So after blood transfusion, the hemoglobin level of the patient Pinky was 9.4 gram per deciliter, and we are planning for discharge. Dr. Tanu, please ready her discharge paper, and sister, please counsel the patient attendant about the birth companion and family planning. discharge paper बना देंगे। patient
पेशेंट को डिस्चार्ज कर रहे हैं। अब तो 2 यूनिट ब्लड जब ट्रांसफर हो चुका है और एचबी भी बढ़ चुका है, अब आपको इसके ध्यान रखना है ये एचबी कम ना हो, इसके लिए आपको ये आयरन कैल्शियम की गोलियां हैं, ये देख लीजिए, और खाने है आपको, ठीक है। आयरन की गोलियां आपको सुबह शाम लेनी है और खट्टे फलों के साथ नींबू पानी के साथ लेनी है, तो इनका एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है। खाना खाने के बाद लेनी है। कैल्शियम की गोलियां 3 घंटे के बाद लेनी है और दूध के साथ लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपको देखो पहला बच्चा है तो परिवार नियोजन का भी ध्यान रखना पड़ेगा। हमारे यहाँ पर डीडीवी अस्पताल में 712 कमरे नंबर में परिवार नियोजन के तरीके बताए जाते हैं, जिसमें आप प्रॉपर्टी भी लगवा सकते हैं, 5 साल वाली 10 साल वाली लगाई जाती है, इम्प्लांट्स भी लगाए जाते हैं, लेफ्ट हैंड पे पिंडी की तरह होता है, वो भी बहुत आसान तरीका है और अच्छा तरीका है। और इसके इंजेक्शन भी लगा सकते हैं, लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पर इंजेक्शन हम अवॉइड करते हैं। ठीक, उसके बाद आपको आप डिस्चार्ज होकर जा रहे हो, खाने पीने का ध्यान रखना है, घूमना है और बच्चे के भी घूमने का ध्यान रखना है। 8 से 10 बार बच्चा घूमना ही चाहिए, ठीक है। अगर अदरवाइज आपको कुछ भी परेशानी होती है तो आप इमरजेंसी में आकर दिखा सकते हो। 1 हफ्ते बाद आपको दोबारा आना है विजिट के लिए। So after being discharged from the ANC ward, Pinky did not come for the follow-up. Due to which, at 37 weeks of pregnancy, she arrived at casualty with labor pain and sign of exhaustion. On examination done by the doctor, she was found 4 to 5 centimeter dilated and 50% effaced. She was promptly stabilized by the team and shifted to labor room immediately, where an experienced team of doctors and nurses are there to tackle the case. Now let's see what happens in the labor room. डॉक्टर जल्दी आइए। पेशेंट आइए हमारे पास। Ma'am, this is our patient Pinky. He came from casualty with 37 weeks. With labor pain and her hemogram is 9.4 grams as per casualty report. Please ma'am से देख लीजिए। चलो नंबर मेरे साथ ना। पिंकी नंबर मेरे साथ लिख के शाम को जब सिस्टर जी ड्यू मेडिसिन का पेशेंट का नेगेटिव ओके मैम नंबर तेरे साथ में प्लीज यस मैम बराबर अच्छी रिकॉर्ड स्पीड प्रैक्टिस आपने टेस्ट यस मार्क यस मैम करोगी प्रोग्रेस ऑफ लेबर मॉनिटर करोगी के कॉन्ट्रैक्शन फिजिकल हार्ट रेट मॉनिटर करना है ऑन टाइम चेंज करने के परफॉर्म करना है अभी 4 आगे now patient is coming or not when patient is coming please जल्दी आइए पिंकी अपने पेट पे लगाओ दोनों पैर पेट पे लगाओ पिंकी पास हो ध्यान से पिंकी पास हो ध्यान से लंबी लो सांस लो ठीक है और जब दर्द आएगी ना उसमें तब दर्द के साथ जोर लगाना है बच्चा आराम से हो जाएगा ठीक है थोड़ा जोर लगाओ बढ़िया लेनो के लिए सही दिया एंड वीडियो कैटेगरी जो भी गिवन और ये देने में तो देखिए ओके बुला रहे हैं आपको सामने रेडी है यस मैम रेडी ओके ओके पिंकी रेडी बच्चे की लव Within 1 minute after the delivery, injection oxytocin, 10 units, I am given. Okay, so when we deliver, we will perform the delivery cord after 1 minute. Okay, ma'am. It's 1 minute to delivery, cut the cord, और baby का सेक्शन करें. But पेशेंट पिंकी बच्चे को देखो क्या है आपका बच्चा ओके आप बच्चे को आप भी बच्चे को देखो आज की हमारे लक्ष्मी आ गई
Okay, and then the baby, female baby has been delivered. Now we will wait for the spontaneous expulsion of placenta. If there is no contraction, we will remove the placenta from the placenta. Membranes are completed with the complete coagulation and the contractions are good. And there is no further bleeding and there is no placental bleed currently. So there is very minimum bleeding is there. There is no complication. There is just a deep bleed on it. Pass करने for 6 to 7 hours के बाद Doctors and nurses brilliantly managed the case. Pinky delivered a healthy baby and both are stable now. After being kept under observation, she spent 3 days in TLC ward recovering well. Now it's discharge time. But before she leaves and steps into the motherhood, our PNC sister Kavita has something to advise her. Let's see what it is. Scene 4 PNC ward. आप एडमिट स्टार्ट कर रहे हैं what the status of the patient and bleeding is normal check किया आपने yes vital sign है ये speaking कैसा रहा कोई दिक्कत आपकी बच्चेदानी भी अपना अपनी जगह पर आ रही है थोड़े कपड़े नीचे करो ऊपर अपनी ठीक है सब नॉर्मल है अब हम आपको ठीक है करते हैं आप छुट्टी करते हैं बच्चा को मेरा ठीक है बाकी आप सरकारी सो परिश्रम प्रिपेयर आप स्टार्ट हो गया तो पेशेंट एंड हैंडल ओके एंड आप स्टूडेंट कोई है साथ में तुम्हारे हाँ तो बात नहीं करा दो जरा कुछ समझाना है बात जी देखो ये दो छुट्टी के पेपर है एक बच्ची की छुट्टी है और एक माँ की छुट्टी ठीक है ना और दोनों को दिखाने के लिए आना है 1.5 महीने मतलब 6 हफ्ते बाद दिखाने के लिए आना है बच्ची को इंजेक्शन भी लगी है और माँ को भी दिखाना है ये माँ के लिए कुछ दवाइयाँ लिखी हुई है ठीक है ये सब दवाइयाँ हैं दिन में 3 बार है 3 बार है 4 बार है और 2 बार है और इसमें ये ध्यान रखना इसमें ताकत की दवाई नहीं है ठीक है ना ताकत की दवाई में आयरन की गोलियां जरूर खिलानी है आपको पता है ना आयरन की ना खिलाने से क्या हालत होगी इसकी ठीक है तो आयरन की गोली दिन में 2 बार लेनी है सुबह शाम और नींबू पानी से लेना ठीक है और कैल्शियम दिन में 1 बार लेना और बिल्कुल डाइट में क्या है आयरन रिच डाइट के लिए मतलब पालक अंकुरित दाल गुड़ चना ये सब खिलाना है खाने में कोई कमी नहीं करना सब खिलाना है ठीक है अच्छा ये बताओ फीड वगैरह ले रहे हैं ना बच्चा क्यों नहीं बिल्कुल नहीं निकाला ठीक है और ये कैसे कर रखा है बच्चे को दिखाओ कैसे अच्छा एक बात का ध्यान रखना जब भी बच्चे को खिलाना है बच्चे को ऐसे करवट लेना जिसका कान कंधा और फूला एक लाइन पर आए ठीक है और बच्चे को अपनी तरफ लेकर आना है उसको झुककर पिलाओगे ठीक है ऐसे पिलाना और बच्चे को 10 मिनट 10 मिनट की ठीक है पिलाने के बाद कि आपने देखो ऐसे कंधे से लगा समझ आ गई अच्छा ठीक है टांगों में दर्द है जब भी तुम बाथरूम जाओगी अच्छे से साफ पानी से धोना अगर कुछ ज्यादा टांगों में दिक्कत आए तो पीनाडीन गुनगुने पानी में 1 ढक्कन डालकर 10 से 15 मिनट बैठा लें ठीक है ये सब करना पड़ेगा हाँ
और सुनो, ये ऐसे तो टांगे नीचे की टूट जाएंगे, चौकड़ी पे लिखने मारते हैं, पैर सीधे रखकर या क्रॉस लेग करके बैठना है। ये ज्यादा तो नहीं नहीं बैठ, हाँ हाँ ठीक है ऐसे करना। हाँ बताना चाहती हूँ, सरकार के द्वारा एम्बुलेंस वो की जा रही है, 102 नंबर कमरे में अपने मोबाइल से फोन करना, वो फ्री में आपको घर तक छोड़ देना है, ठीक है। और ये QR कोड है, ये फीडबैक दे देना इसमें, ठीक है। एपीएमसी की विजिट समय समय पर है जरूरी, तभी होगी जच्चा और बच्चा की सुरक्षा पूरी।